انتظار کی گھڑیاں ختم، لاہوریوں تیار ہو جاؤ، ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے بسنت کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں بسنت 9 اور 10 فروری بروز ہفتہ اور اتوار منائی جائے گی۔ صدر ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن شیخ محمد سلیم کا کہنا تھا کہ سٹی 42 نے گزشتہ 10 سال سے بسنت کے لیے لاہوریوں کی ترجمانی کی۔ حکومت پنجاب کی مشاورت کے ساتھ فروری 2019 کے دوسرے ہفتے 9 اور 10 فروری بروز ہفتہ اور اتوار کو بسنت کا تہوار منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ شیخ سلیم کہتے ہیں کہ پتنگ اور ڈور بنانے کی صنعت سے وابستہ تمام افراد نے کام شروع کر دیا ہے۔ بسنت کے تہوار سے اربوں روپے کا سرمایہ گردش میں آئے گا۔ لاہور کی فضاؤں میں بو کاٹا کی گونج، آسمان پر بسنت کے رنگ بکھیرنے کے لیے پنجاب حکومت کے سنجیدہ اقدامات۔ کمیٹی کے اراکین کے نام سامنے آ گئے۔ بسنت کا تہوار منانے کے لیے پنجاب حکومت کی 10 رکنی کمیٹی تجاویز مرتب کرے گی۔ کمیٹی کے کنوینر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت ہوں گے۔ کمیٹی میں صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان، یوسف صلاح الدین اور مبشر لقمان شامل ہوں گے۔ کمیٹی میں کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے صدر، ڈی سی لاہور، آئی جی پنجاب پولیس یا ان کا کوئی نمائندہ شامل ہوگا۔ کمیٹی میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری انفارمیشن اور سیکرٹری کلچر بھی رکن ہوں گے۔ کمیٹی 2 ہفتوں کے اندر اپنی تجاویز مرتب کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو پیش کرے گی۔ بسنت کے لیے 10 یا 17 فروری کی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلایا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کے اراکین بھی بسنت منانے کے لیے بےتاب، خواتین اور مرد اراکین نے بسنت کی حمایت کر دی۔ اراکین نے محفوظ بسنت منانے کے لیے تجاویز بھی دی۔ لاہور کے اراکین 10 سال بعد بسنت کے انعقاد کے اعلان پر خوش دکھائی دیے۔ خواتین اراکین کا کہنا تھا کہ بسنت سے خوبصورت فیسٹیول کا انعقاد ہوگا، پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوش آئند اقدام ہے اس طرح سے، کیونکہ یہ پنجاب کی ثقافت کا صدیوں سے حصہ رہا ہے اور لوگ جو ہیں اسے چھوٹے بڑے پیمانے پہ ہمیشہ سے مناتے رہے ہیں۔ بسنت ہونی چاہیے جیسا کہ پہلے 7 سال پہلے ہوتی تھی، جب ہم خود بھی گڈیاں اڑاتے تھے، میرے بچے، میرے میاں، اور یہ ایک بہت اچھا تہوار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کو کتنی آمدنی ہوتی ہے، لوگ دور دور سے آتے تھے۔ مرد اراکین نے بسنت منانے کی حمایت تو کی، مگر ساتھ ساتھ مفید مشورے بھی دے ڈالے۔ بسنت دیکھیں، جب یہ دھاتی تاریں، کلچ وائر، جن چیزوں سے جان کو نقصان ہو سکتا ہے، ہیلمٹ اور یہ ساری چیزیں، جب تک موٹر سائیکل پر پابندی لگائی جائے اور چھانگا مانگا یا دریائے راوی کے کنارے کہیں پہ بسنت کا پوائنٹ بنایا جائے۔ یہ تجویز تو یہ ہے کہ اگر بسنت منانی ہے تو اس میں پتنگ کو نکال دیا جائے اور باقی اچھے میلے سجائے جائیں، کھیل کود ہونی چاہیے، اس میں مقابلے ہوں بچوں کے، سکولز کے آپس میں مقابلے کروا دیے جائیں اور یونین کونسل کی سطح تک اس بسنت کو منایا جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے 300 سے زائد لاہوری چیئرمین بسنت کے موقع پر ہلا گلا کرنے اور دوستوں کی دعوتیں کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وقار گھومن، سٹی 42۔ سٹی 42 نے لاہوریوں کے بڑے فیسٹیول کی بحالی کے لیے 10 سال خصوصی مہم چلائی۔ پروگرام سٹی ایٹ 10، نیوز نائٹ، سلام لاہور اور بنام سرکار میں بھی کئی بار بسنت کی بحالی کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ سٹی 42 جو لاہوریوں کا اپنا پسندیدہ چینل ہے۔ سٹی 42 نے ہمیشہ جہاں لاہور کے مسائل اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، وہیں لاہوریوں کے لیے اچھی تفریح کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پیش رہتا ہے۔ سٹی 42 نے کبھی ہارس اینڈ کیٹل شو منعقد کروا کر لاہوریوں کو تفریح مہیا کی، تو کبھی 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر پریڈ منعقد کروا کر لاہوریوں کے دل جیتے۔ بسنت جو کہ لاہوریوں کا پسندیدہ فیسٹیول تھا، جس میں شرکت کے لیے نہ صرف دیگر شہروں سے پاکستانی لاہور کا رخ کرتے تھے، بلکہ انڈیا سے بھی کئی معروف اداکار بسنت منانے لاہور پہنچتے تھے۔ انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک سے غیر ملکی بسنت لاہور میں منانے آتے تھے۔ بسنت کے دنوں میں لاہور میں یہ عالم تھا کہ ہوٹلز میں کمروں کی بکنگ ملنا دشوار ہو جاتا تھا اور بیرون ممالک سے لوگوں کی آمد سے پاکستان اربوں روپے کی کمائی کرتا تھا۔ تقریباً 10 سال قبل لاہوریوں کے پسندیدہ فیسٹیول پر پابندی عائد کر دی گئی، لیکن سٹی 42 نے لاہوریوں کی آواز بلند کی اور 10 سال تک بسنت کی بحالی کے لیے جنگ جاری رکھی۔ پروگرام سٹی ایٹ 10، نیوز نائٹ، سلام لاہور اور بنام سرکار میں بھی کئی بار بسنت کی بحالی کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ ابھی حال ہی میں سٹی 42 نے بسنت کی بحالی کے لیے ایک مہم شروع کر رکھی تھی۔ سٹی 42 کی کاوشیں بالآخر رنگ لے آئیں۔ شہر لاہور کے لیے ایک اور اچھی خبر، ورلڈ بینک مختلف یوسز میں 19 کروڑ سے ترقیاتی منصوبے شروع کرے گا۔ رقم سے واٹر فلٹریشن پلانٹ، سرکاری رہائش گاہوں کی مرمت ہوگی، ایم سی ایل کی مشینری، ورک شاپ کی بحالی اور عوامی مقامات پر پبلک ٹوائلٹس بھی تعمیر کیے جائیں گے۔
वर्ल्ड बैंक पंजाब सिटीज गवर्नेंस अप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत फंड्स फराहम करेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड बैंक के फंड से म्युनिसिपल सर्विसेज के मंसूबे शुरू करेगा। वर्ल्ड बैंक के फंड से यूनियन काउंसिल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, सरकारी रिहाइशगाहों की बहाली, MCL की मशीनरी और वर्कशॉप की बहाली और अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर होंगे। पंजाब सिटीज गवर्नेंस अप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की स्कीमों के हवाले से तमाम फैसले लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक की जारी तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक जायजा इजलास में किए गए। वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से मुस्लिम और क्रिश्चियन कब्रिस्तानों की बहाली के मंसूबे भी शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। लाहौरियों बच के रहो, घर के बाहर गाड़ी धोना जुर्म बन गया। खिलाफ वर्जी पर 3 माह कैद या 2 लाख जुर्माना होगा। घर की रैंप पर पानी बहाना भी जुर्माना देना होगा, किसी से रियायत नहीं होगी। एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हिदायत और फैसलों की रोशनी में घरों में पानी का ज़िया रोकने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। वासा के एरियाज में घरों में साफ पानी के बेदरेग इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। वासा ने वाटर ड्रेनेज एक्ट 2017 की क्लॉज 21B के तहत फैसला किया है और घरों के अंदर से पानी बाहर आने पर भी सजा और जुर्माना होगा। घरों के बाहर या रैंप पर पानी लगाकर गाड़ियां धोना भी ममनू होगा। वासा ने कानून पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया है, जिसकी बाकायदा तशहीर की जाएगी। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि पानी के ज़िया को रोकने के लिए कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उधर LDA ऑफिस में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पहले 1 विंडो सेल का आगाज कर दिया गया। DG LDA आमना इमरान खान ने इफ्तिताह किया। अब महीनों ख्वार नहीं होना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन और फर्दों का हुसूल सिर्फ 1 दिन में हो सकेगा। DG LDA आमिना इमरान, DG PLRA असलम राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पहले 1 विंडो सेल का इफ्तिताह किया। असलम राव का कहना है कि शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर 1 विंडो सेल फंक्शनल कर दिया गया है, जहां शहरियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम तर शिकायत सुनकर फौरी हल की जाएंगी। रजिस्ट्री वेरिफिकेशन और फर्दों के हसूल में पहले 1 माह का वक्त दरकार होता था, अब फौरन रजिस्ट्री की तस्दीक और फर्द जारी कर दी जाएगी, जिससे शहरियों का वक्त और पैसे की बचत होगी। उनका मजीद कहना था कि पंजाब भर में 70% तक लैंड रिकॉर्ड का डाटा डिजिटलाइज किया जा चुका है। जल्द शहरी मौजाजात भी कंप्यूटराइज कर लिए जाएंगे, जिससे करप्शन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। शहर में पटवारियों का काल, 352 मौजाजात के लिए सिर्फ 91 पटवारी। वर्कलोड बढ़ने से साइलिन के काम इल्तवा का शिकार होने लगे। शहर में 291 पटवार सर्कल और 352 मोजाजात मौजूद, जबकि पटवारियों की तादाद सिर्फ 91 है। ना तो नई भर्तियां की गईं और ना ही पटवारियों की एडजस्टमेंट के मसाइल हल हो सके। पटवारियों की कमी के बायस हर पटवारी 4 से 5 मोजाजात में काम कर रहा है। मोजाजात के एडिशनल चार्ज के बायस पटवारियों पर वर्कलोड बढ़ चुका है, जिसके बाद शहरियों के काम इल्तवा का शिकार हैं। वाज़ेह सरकारी अहकामात के बावजूद पटवारियों की कमी के बायस पटवार खानों में प्राइवेट बंदे भी पटवारियों के साथ काम कर रहे हैं, जिससे करप्शन मसाइल भी दरपेश हैं। मगर इसके बावजूद ताहाल शहरियों की सहूलत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सका। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बजट मंजूर कर लिया गया। 2018-19 का 1 अरब 22 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया। बजट का 9% तिबी तहकीक पर खर्च होगा, जबकि 2 करोड़ के वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बजट मंजूर। 2018-19 का 1 अरब 22 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया। बजट का 9% तिबी तहकीक पर खर्च होगा। अस्पतालों में मरीजों की शिकायत दूर न करने वाले इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जाहिद अख्तर जमान ने सूबे भर के CEOs हेल्थ को परवाना जारी कर दिया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत पंजाब भर के CEOs हेल्थ का बजरिया वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद खान रांझा, DG हेल्थ डॉक्टर मुनीर अहमद समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि CEOs और DHOs अस्पतालों में तिबी सहूलियात की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाए। स्टाफ की हाजिरी की हफ्तावार रिपोर्ट DG हेल्थ को भिजवाई जाए। जिला और तहसील अस्पतालों से कंसल्टेंट की तहरीरी रिपोर्ट के बगैर मरीज टीचिंग अस्पतालों को रेफर ना किए जाएं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी नैब के रडार पर आ ही गए। नैब ने लग्जरी दफातर, गोदामों और मेडिसिन स्टोर्स के किरायों की तफसीलात तलब कर ली। गरीब मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के नाम पर सेहत के दोनों महकमों ने गुज़श्ता हुकूमत के दौर में 1 दर्जन से जायद प्रोजेक्ट्स और कंपनियां तश्कील दी। इन कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के लिए गुलबर्ग, मॉडल टाउन, कैंट, शादमान में किराए पर ली गई इमारतों और अद्वियात जखीरा करने के लिए हासिल किए गए गोदामों का माहाना 2.5 करोड़ रुपए किराया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ के गुलबर्ग में वाक़े PMU का किराया माहाना 8 लाख, प्रोक्योरमेंट सेल 5.5 लाख, डेवलपमेंट विंग 5.25 लाख, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के दफातर 6 करोड़, पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड
2,17,000, ड्रग कंट्रोल विंग 4 करोड़ 18 लाख, पब्लिक हेल्थ एजेंसी 5 लाख, मेडिसिन स्टोरेज के लिए सुंदर, मांगा, ठोकर और गुरुमांगट रोड के 5 गोदामों का मजमूई किराया 1 करोड़ 70 लाख रुपए है। हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी 3.25 लाख, PSPU 2,95,000 और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के दफ्तर का किराया 3,60,000 माहाना है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस गुलबर्ग का किराया 10,45,000, हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर का किराया 7.5 लाख, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटरनल पॉलिसी यूनिट के दफ्तर का किराया 6.25 लाख रुपए अदा किया जा रहा है। बच्चे हवालगी केस, फरीकैन कमराए अदालत में गुत्थम गुत्था, बच्चे का वालिद और मामू आपस में दस्तो गरेबा हो गए। सिक्योरिटी ने दोनों को धर लिया, मौफी पर दोनों को छोड़ दिया गया। एडिशनल सेशन जज रफाकत कमर ने सुमेरा बीबी की हब्से बेजा की दरखास्त पर समाअत की। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ससुराली रिश्तेदार आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जबकि शौहर खालिद ने मार पीट कर घर से निकाल दिया है और 8 साला अली रजा को हब्से बेजा में रखा है। सुमेरा बीबी ने इस्तदा की कि उसके बच्चे को बाप की तहवील से बाजियाब करवा कर उसके हवाले किया जाए। 8 साला अली रजा ने बयान दिया कि वो अपनी वालिदा के साथ रहना चाहता है, जिस पर अदालत ने बच्चा माँ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद की ज़ेर सदारत क्रिसमस के हवाले से इजलास हुआ। शहर के 5 मकामात पर क्रिसमस बाजार लगाने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगा थीं। डीसी लाहौर सालेहा सईद की ज़ेर सदारत क्रिसमस के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें उलमाए कराम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख, हिंदू और दीगर अक़लियतों के नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद का कहना था कि क्रिसमस के मौके पर यूहन्नाबाद रेलवे स्टेशन, जल्लो मोड़, बहार कॉलोनी और चाइना स्कीम में 5 क्रिसमस बाजार लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग में बताया गया कि क्रिसमस डे पर 594 चर्चों पर 6,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपनी सतह पर इजलास करने और तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। स्पेन के 2 रुकनी वफ्द का शाही कला और बादशाही मस्जिद का दौरा, लाहौर की तारीखी इमारतों की खूबसूरती को खूब सराहा। कहते हैं लाहौर लाहौर है। स्पेन में पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क करार देने पर स्पेन के बाशिंदों ने लाहौर का दौरा किया। 2 रुकनी वफ्द का कहना था कि लाहौर के बारे में बहुत सुना था, यहाँ से बहुत प्यार मिला और बहुत सी यादें समेट कर ले जा रहे हैं। उनका कहना था कि लाहौर की तारीखी इमारतों की खूबसूरती काबिल दीद है और लाहौरी खाने भी लाजवाब है। वफ्द ने शाहिद किले में सेल्फियां ली और खुशी का इजहार भी किया। उधर दार अरकम स्कूल मंसूरा ब्रांच में सालाना खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब में क्या हुआ जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। की रस्सी को अपनी जानिब खींचकर अपने जोरे बाजू का मुजाहिरा करते ये बच्चे कोई पेशावर मजदूर नहीं, बल्कि ये नौनिहाल हैं जो अपने जोश और जज्बे का अपने जोरे बाजू से मुजाहिरा करना खूब जानते हैं। उनके दिल में जीत का जुनून बड़े बड़े पहलवानों को चित करने की सलाहियत रखता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इधर बहुत मजे की गेम्स भी हो रही हैं। फजा में गुब्बारों के छोड़ने से तकरीब का आगाज हुआ। क्या छोटे क्या बड़े सब बच्चे कतार बनाए फौजी बैंड पर परेड करते नजर आए। दौड़ के मुकाबले शुरू हुए, कोई सीधा दौड़ा तो कोई उल्टा, कोई एक दूसरे के साथ टांग बांध कर दौड़ा। माओ ने गुब्बारे फुलाने और फोड़ने में बच्चों की मदद की। फिर शुरू हुई साइकिल रेस। छोटे बच्चों के बाद आए बड़े बच्चे मैदान में और दिखाए जिम्नास्टिक के करतब। आग के लपकते शोलों से बच्चों ने कूद कर दिखाए खूब करतब। तकरीब के आखिर में जीतने वाले बच्चों में मेडल्स तकसीम किए गए। तकरीब के शुरका का कहना था कि स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि गैर निसाबी सरगर्मियों को रोजाना की बुनियाद पर पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी हो सके। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अकाउंटेंट की डिग्रियां रखने वालों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्रियों की इक्विवेलेंस अचानक बंद कर दी। कमीशन अकाउंटेंट की डिग्रियों को आइंदा एमकॉम के बराबर तस्लीम नहीं करेगा, जबकि यूनिवर्सिटियों को तलबा की डिग्रियां मुस्तरद करने का भी इख्तियार होगा। एजीसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्रियां इक्विवेलेंस करने से मुआजरत कर ली है और अब किसी भी उम्मीदवार की अकाउंटेंट की डिग्री को एजीसी की जानिब से इक्विवेलेंस जारी नहीं होगी। कमीशन अकाउंटेंट की डिग्री को अब एमकॉम के बराबर भी तस्लीम नहीं करेगा। तफसीलात के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ACCA और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्रियों को इक्विवेलेंस नहीं मिलेगा।
HEC की जानिब से जारी किए गए मरासले में कहा गया है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज अपने ज़वाबित के मुताबिक डिग्रियों की इक्विवेलेंस देने की मजाज होंगी और यूनिवर्सिटीज के इक्विवेलेंस सेल चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्रियों की इक्विवेलेंस के लिए ज़वाबित बनाएंगे। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए खुशखबरी, स्कूलों में खेलों के फिरोग के लिए स्पोर्ट्स का पीरियड कराने का फैसला कर लिया गया। हर बच्चे का खेल में हिस्सा लेना लाजमी होगा। स्कूलों में खेलों को फरोग देने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कमेटियां तश्कील दी गई हैं। तमाम स्कूलों में एक स्पोर्ट्स पीरियड होगा जिसमें बच्चे टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और दीगर खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। DEO सेक्रेटरी मलिक एहसान का कहना है कि स्कूलों में खेलों के फरोग के लिए हुकूमत ने अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी है। उनका कहना था कि तलबा को तरोताज़ा रखने के लिए खेलों का इनेकाद बहुत जरूरी है। उधर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। ACD के क़याम से मौसूल होने वाली शिकायत का बर वक्त अजाला हो सकेगा। दर्ज की जाने वाली शिकायत वज़ीर आला पंजाब, स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटीज़ को एक ही वक्त में मौसूल होंगी। मौसूल होने वाली शिकायत को वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकेगा। शिकायत करने वाले शख्स को बजरिया ईमेल आगाह भी किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन ने अथॉरिटीज़ को ऑनलाइन मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी हल करने की हिदायत की है। मरासले में कहा गया है कि स्कूलों से मुतालिक शिकायत पर अमल दरामद न करने पर अथॉरिटीज़ जिम्मेदार होंगी। मुज़र सेहत तेल का इस्तेमाल रोकने के लिए फूड अथॉरिटी का महकमा लाइव स्टॉक को खास स्लॉटर हाउसेज में मौजूद आलाइशें ज़ाया या बायोडीजल कंपनीज को फराहम करने की तजवीज़। DG पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनिस की जानिब से सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को लिखे जाने वाले खत में बयान किया गया है कि बेशतर अनासर जानवरों की आलाइशों से तेल तैयार करके खाने पीने के मराकज़ को फरोख्त करते हैं जो खुराक की तैयारी में इस्तेमाल होता है और इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र है। खत में दरखास्त की गई है कि सरकारी सतह पर जानवरों की आलाइशें मार्केट में बेचने की बजाय भट्टियों में ज़ाया कर दी जाएं। इस ज़िम्न में लाहौर समेत सूबे भर की मीट कंपनीज और स्लॉटर हाउसेज में मौजूद आलाइशें ज़ाया या बायोडीजल कंपनियों को नीलाम की जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी लोगों को तंग कर रही है, वजीर आजम से शिकायत करूंगा। विफाकी वजीर शेख रशीद के बयान पर सूबाई वजीर खुराक भी हरकत में आ गए। कहते हैं फूड अथॉरिटी की नाकामी का रोना रोने वालों के लिए फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी ही अच्छा जवाब है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने 2 रोज कबल पंजाब फूड अथॉरिटी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि पंजाब फूड अथॉरिटी से मुतालिक कई शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वो लोगों को बिला वजह तंग करती है। मैं इससे मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शिकायत करूंगा। वफाकी वजीर के इस इज़हार ख्याल पर सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी कहते हैं कि वफाकी वजीर की ये बात दुरुस्त नहीं। हम अपनी कारकर्दगी से उनकी बात का जवाब देंगे और फूड अथॉरिटी से नाराज या बुरी कारकर्दगी का राग अलापने वालों के लिए फूड अथॉरिटी की बेहतर कारकर्दगी ही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि LDA शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स का जॉइंट ऑपरेशन। LDA ने मुल्तान रोड पर 7 गैर कानूनी सोसाइटीज के दफातर सरबमोहर कर दिए। सोसाइटीज में सड़कें और सीवरेज सिस्टम भी मिसमार कर दिया गया। LDA के मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग और डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स ने गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की। थीम पार्क हाउसिंग स्कीम का इंफ्रास्ट्रक्चर मस्मार कर दिया गया। LDA हुक्काम के मुताबिक ये स्कीम लाहौर डिवीजन के मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए ग्रीन एरिया में बनाई जा रही थी। इसके अलावा मजीद 5 गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों में कायम गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गयी। ऑपरेशन के दौरान अलकादिर टाउन, अलबरकत टाउन, गोल्ड एशिया ऑर्चर्ड, बिन आलम हाउसिंग स्कीम और एलिगेंस होम की 4 दीवारियां, सिवरेज सिस्टम, सड़कें, दफातर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर अजहर अली की हिदायत पर किया गया। डायरेक्टर बुशरा नसीर और सीनियर स्टेट ऑफिसर अली रियाज ने ऑपरेशन की निगरानी की। डायरेक्टर हुमाना सईद और स्टेट ऑफिसर शफीकुर रहमान भी हमरा थे। उधर LDA समनाबाद टाउन और स्टेट ब्रांच का मुश्तरका ऑपरेशन बंद रोड फर्नीचर मार्केट में गैर कानूनी तौर पर कायम 164 दुकानें सरबोमोहर कर दी। हाईकोर्ट के हुक्म पर टाउन प्लानिंग विंग LDA के अमले ने समनाबाद टाउन के ताउन से बंद रोड पर ऑपरेशन किया और फर्नीचर मार्केट की 164 दुकानें सरबोमोहर कर दी। LDA हुकाम के मुताबिक सरबोमोहर होने वाली तमाम दुकानें गैर कानूनी तामीर शुदा थीं और उनके कमर्शियल नक्शे मंजूर शुदा नहीं थे। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग LDA फराज अख्तर ने अमले और पुलिस की हमरा कार्रवाई की। ऑटो गुड्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अशिया ज़रूरिया से समेत दीगर सेक्टर्स के दरामद कुनिंदगान भी मौशी मुश्किलात का शिकार हो गए। दरामद कुनिंदगान कहते हैं बरामदात बढ़ाने और दरामदात में कमी के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। हुकूमत दरामद कुनिंदगान के मसाइल पर तवज्जो दे। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट इसी बारे में है।
ऑटो गुड्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अशिया ज़रूरिया और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के दरामद कुनिंदगान भारी टैक्सेस, ऑडिट के नोटिस, सेल्स टैक्सेस समेत दीगर मुआशी मसाइल का शिकार हो गए हैं। लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि कारोबारी बरादरी बरामदी हुजूम बढ़ाने और दरामदात कम करने के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन दरामदात को यकमुश्त ना रोका जाए। ऐसे इकदाम से कारोबार जमूत का शिकार हो जाएंगे। अब यकमुश्त जब ये पूरा लागू करेंगे तो लोगों के कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खुदा के लिए इसको ग्रेजुअली लेके आए ताकि लोग अपने साथ साथ दूसरे कारोबार भी और अपना उसको सोच सकें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रंच है, लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन है, सारा बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। इलेक्ट्रॉनिक्स के दरामद कुनिंदगान का कहना है कि आए रोज रुपए की कद्र में गिरावट से तिजारती सरगर्मियां शदीद मंदी का शिकार हैं। दरामद कुनिंदा और सीनियर ताजिर रहनुमा तारिक फिरोज कहते हैं कि ऑडिट की तलवार, सेल्स टैक्स, दरामदी ड्यूटी जैसे मसाइल हल किए बगैर कारोबार बेहतर नहीं हो सकते। दिन ब दिन डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, डेली 1 रुपया 1.5 रुपया 50 पैसे 40 पैसे रेट बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो इम्पोर्ट है उसको बहुत महंगी हो गई। दरामद कुनिंदगान कहते हैं कि मकामी इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए ताकि दरामदात का मुतबादिल मुल्क में तैयार हो और मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बच सके। कैमरामैन अली नोमान के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और अब सनती हलकों से अहम खबरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। ट्रेडर्स एसोसिएशन के सरबराह आमिर मलिक की क़यादत में ताजरों के वफ्द की चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महमूद मसूद तमन्ना से मुलाकात। वफ्द ने बरगद मार्केट को दरपेश बुनियादी मसाइल से चीफ ऑफिसर को आगाह किया। मॉल रोड पर आर्जी तजावुजात और ट्रैफिक जैम के मसाइल। सदर मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद की दावत पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम जैद, म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू ने मॉल रोड का दौरा किया और तमाम तजावुजात खत्म करा दी। मोबाइल फोन की तजारत से वाबस्ता ताजिरान का अहम इजलास। सीनियर ताजिर रहनुमाओं मलिक अमानत और अमीन मजहर भट्ट की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की दरामद और ड्यूटीज के तयन का SRO जारी करने का मुतालबा। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 24वां और रवा साल का आखिरी इजलास भी तरक्याती स्कीमों के गिले शिकवे पर ही खत्म हो गया। तरक्याती स्कीमों की अदम मंजूरी पर मेंबरान का इजहार तशवीश, निजाम की तब्दीली पर मुशावरत के इसरार और शेर की तिबी उम्र के इंकशाफ समेत अपोजिशन और लीगी अराकीन की नोक झोंक भी कार्रवाई का हिस्सा रही। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाउस इजलास के आगाज पर ही अपोजिशन और लीगी अरकान के माबैन तुंदो तेज जुमलों का तबादला हो गया। डेप्यूटी मेयर मियां मोहम्मद तारिक ने PTI क़यादत और वज़ीर आला पंजाब को लूला लंगड़ा कह डाला। अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी और राजा फजल इलाही भी न रह सके, अल्फाज की नोक झोंक में दिल खोल कर हिस्सा डाला। अनीला साजिद बेग ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर लीगी क़यादत को आड़े हाथों लिया। कहती हैं शेर बूढ़ा हो चुका है। शेर को बूढ़ा कहने पर लीगी अरकान भी सीख पा हो गए। शेर की तबाही मुद्दत 16 साल है और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, उसका यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है कि वो उसका जबड़ा खुल जाता है और वो अपने नाक में आपका शेर बूढ़ा हो गया है, इसे एक्सेप्ट करें अगर आप चाहते हैं। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने करारदादों पर जवाब देते हुए कहा कि तरक्याती स्कीमों पर एतराजात दूर करके चीफ इंजीनियर बल्दियात को अरसाल कर दें जो ताहाल तवज्जो की मुंतजर हैं। जो रकम इलेक्शन पर खर्च करनी है वो निजाम को मजबूत करने पर लगाई जाए। काउंसलर हजरात को आप 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया दे के उनसे कह दें 10 लाख दे दें और उनको कह दें कि जी ये स्कीम जो है इसी काउंसलर की ये जो स्कीम है ये इसी के तहत होगी और सरकारी अमला उसको सुपरवाइज करेगा और वो पॉलिटिकली उसको देखेगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनको इतना पैसा दे दें और वो करेंगे। इजलास में अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी ने लॉर्ड मेयर लाहौर की तकरीर से इत्तफाक करते हुए कहा कि काश पहले इसी तरह की सोच अपनाई जाती तो यूनियन काउंसिल्स के मसाइल जरूर हल हो जाते। मोहतरम लॉर्ड मेयर साहब ने जो तजावीज़ आज हाउस में पेश की हैं उन पर पूरी तरह अमल होना चाहिए और अपोजिशन के हम जितने भी अरकान हैं वो आपके साथ हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस हाउस की कदर हो, इसकी इज्जत में इजाफा हो और इसको मजबूत किया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रवां साल के आखिरी इजलास में
हॉल रोड और मॉल रोड के पार्किंग प्लाजा की एक मरतबा फिर मंजूरी दी गई, जबकि बसंत के हवाले से हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने समेत 11 करारदादों को भी मंजूर कर लिया गया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सेक्रेटरी आर्काइव ताहिर यूसुफ ने आर्काइव से मुतल्लिका तमाम इदारों को मिलाकर एक नया महकमा बनाने की तजवीज़ कर दी। सेक्रेटरी आर्काइव ताहिर यूसुफ ने तजवीज किया है कि आर्कियोलॉजी विंग, आर्काइव कल्चर, म्यूजियम और शाही किले को मिलाकर एक अलग से महकमा बनाया जाए। सेक्रेटरी आर्काइव की इस तजवीज पर हुकूमत पंजाब ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट और राय मांग ली है। ताहिर यूसुफ का कहना है कि जो इदारा जिस महकमे में नेशनल तौर पर फिट आता हुआ उसके साथ मुंसलिक किया जाए ताकि ये नया महकमा बेहतर तौर पर काम कर सके। 15 लाख रुपए में 1.5 मरले का घर खरीदा, जालसाजों ने जाली कागजात बनाकर कब्जा कर लिया। 4 साल से इंसाफ के लिए धक्के खा रही हूँ। 2 बच्चों की मां सेशन अदालत पहुंच गई, इंसाफ के लिए दुहाई देती रही। सना अमीन का कहना है कि उसने 15 लाख रुपए में बंद रोड के इलाके में 1.5 मरले का घर खरीदा। 2014 से वो अपने घर का कब्जा लेने के लिए अदालतों के चक्कर काट रही है। खातून का कहना था कि उसने अवैस अहमद से 1.5 मरले का मकान खरीदा और उस पर अवैस की 5 बहनों ने भी अदालत में बयान दिए और रकम वसूल की, मगर इसको मकान नहीं दिया गया। किराएदार तनवीर अहमद और अवैस ने साजबाज करके मकान पर कब्जा कर रखा है। अब किराएदार जाली कागजात बनाकर मकान का मालिक बन बैठा है। साबिक मालिक और किराएदार ने मिलकर फ्रॉड किया। 4 साल से थाने कचहरी के चक्कर लगाकर थक चुकी हूँ, खावन से अलहदा हो चुकी हूँ और अपने बच्चों के लिए छत खरीदी थी मगर जालिमों ने छीन ली। थाना शफीकाबाद पुलिस मुल्जिमान से मिली हुई है। अदालत से इंसाफ की मुंतजिर हूँ मगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। जज शौकत राजा ने केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खातून ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी। वापडा के अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी, अथॉरिटी ने 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल इम्तिहान में शरीक होने की शर्त खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के अफसरान अगले ग्रेड में तरक्की पाने के लिए महकमाना इम्तिहान देते हैं जो वापडा अकेडमी की जानिब से लिए जाते हैं। ज़राए ने बताया कि वापडा की जानिब से तरक्की पाने के बाद 3 साल तक इम्तिहान नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब यह शर्त खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने ऐवान वज़ीर आला में 3 आला पुलिस अफसरों की 3 नई असामियां पैदा करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए तैनातियां भी कर दी हैं। एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर, एसपी सिक्योरिटी और स्टाफ अफसर 2 वज़ीर आला फॉर पुलिस और कोऑर्डिनेशन की 3 नई असामियां पैदा की गईं। इन असामियों पर आर्जी बुनियादों पर पहले अफसरान काम कर रहे थे, लेकिन महकमा SNGAD ने रेगुलर तैनातियां कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद चौधरी के वालिद मुख्तार अहमद चौधरी की नमाज जनाजा फैसल टाउन ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब समेत सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद चौधरी के वालिद की नमाज जनाजा डॉक्टर सरफराज आवान ने अदा करवाई। नमाज जनाजा में फयाजुल हसन चौहान, असलम इकबाल, हुसनैन बहादुर दरेशक, राशिद हफीज चौधरी, जहीरुद्दीन, माजिद जहूर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में नए मोहम्मद अलामा इकबाल और जिना ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिना ब्लॉक का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया। इस मौके पर 38वें सालाना बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम की इफ्तिताही तकरीब भी हुई, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM डॉक्टर राहील सिद्दीकी, सेक्रेटरी सेहत साकिब जफर, डॉक्टर तंजीम हैदर, डॉक्टर अहमद हसन, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, प्रोफेसर अब्रार अशरफ और दीगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन का कहना था कि एक तवील अरसा किंग एडवर्ड में बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट गुजारा बहुत सी यादें हैं। यकीनन मुल्क के बेहतरीन तिब्बी इदारों में सर फहरिस्त है। Basically, don't ever forget your alma mater. I always believe कि जिस इंस्टीट्यूशन ने आपको तालीम दी और इस काबिल किया कि आप दुनिया के किसी कोने में जाके अच्छे से अच्छे लोगों के साथ मुकाबला करें, उस इंस्टीट्यूशन को भूलना जो है वो मेरी तरफ से गुनाह कबीरा होता है। गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि मोहम्मद अली जिना ब्लॉक में 2 लेक्चर हॉल्स और इम्तिहानी मराकज भी मौजूद हैं। हुकूमत से दरखास्त है कि एडमिन ब्लॉक के लिए भी फंड्स जारी किए जाएं। मोहम्मद अली जिना ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर 38वें सालाना बैनुल-अक़वामी साइंटिफिक सिम्पोजियम का भी इफ्तिताह किया गया। सिम्पोजियम में अगले 2 दिन मुख्तलिफ मज़ामीन पर सेशंस जारी रहेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। बढ़ाएंगे अब आपको बताएं कि रुकने कौमी असम्बली वहीद आलम खान के कोऑर्डिनेटर शुएब मुगल की दावत वलीमा की तकरीब, अरकान असम्बली वहीद आलम खान, अली परवेज मलिक, रमजान भट्टी समेत दीगर भी शरीक हुए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शोएब मुगल की दावत से वलीमा गुरु मांगट रोड पर हुई, जिसमें रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक, रुकन सूबाई असम्बली रमजान सिद्दीक भट्टी, डिप्टी मेयर हाजी अला रखा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौधरी बाबर अली, चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुर्तजा, एडिशनल IG एजाज शाह समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नौ ब्याहता जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। टीम इंतजामिया के इस्तीफे आना शुरू हो गए। हेड कोच और मैनेजर के बाद मुआविन कोचेस भी मुस्ताफी हो गए। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद कोच रेहान बट और दानिश कलीम ने भी अपने ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेहान बट और दानिश कलीम का कहना था कि हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शिकस्त पर अफसोस है, इसीलिए अपने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं। मैं भी क्विट कर रहा हूँ इस असिस्टेंट कोच की पोस्ट से और आने वाले वक्त में कभी भी जब भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को किसी भी सूरत हाल में किसी भी जगह पे ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर होऊंगा। दूसरी टीमें बहुत बड़ी तैयारी में हैं, हम तैयारी में नहीं है। इस वक्त जो वर्ल्ड कप पे हम टीम लेके गए थे वो 13वें रैंकिंग की टीम थी। इस वर्ल्ड कप में 7वें रैंकिंग की टीम में सेमीफाइनल क्वालिफाई किया तो उसका उन टीमों ने बुरा हाल कर दिया। कौमी हॉकी टीम के मैनेजर और हेड कोच पहले ही अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं, ताहम कौमी सिलेक्शन कमेटी के अराकीन अभी तक इस मामले पर खामोश हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। बात करेंगे लाहौर हाईकोर्ट की, जहां पर टर्नर रोड समेत दीगर सड़कों पर तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने हाईकोर्ट से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक आगाही मुहिम शुरू करने और कॉरपोरेशन को टर्नर रोड की सड़कों पर ट्रैफिक के लिए लाइनें लगाने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने सरदार खुर्रम लतीफ खोसा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौका पर इख्तियार किया कि हाई कोर्ट से मुल्हिका वकला की तारीखी अहमियत का हामिल सीनियर वकला के चैम्बर्स मौजूद हैं। रेहड़ी बहनों और दीगर तजावुजात के बायस वकला को मुश्किलात का सामना है। अदालत में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी जवाद याकूब ने बताया कि अदालत के हुक्म पर टर्नर समेत दीगर रोड्स पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। दरख्वास्त गुजार वकील बोले, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है लेकिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी है, जिस पर अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को आगाही मुहिम कॉरपोरेशन को सड़कों पर लाइनें लगाने का हुक्म देते हुए समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शहर में होने वाली अहम मुलाकातों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को गवर्नर हाउस पहुंचने पर खुशामदीद कहा और उनका इस्तकबाल किया। MNA अलहाज शेख रोहेल असगर की दारोगावाला में लीगी कारकुनान से मीटिंग। कहते हैं कि NA 128 में सीनियर कारकुनान को हल्के का सदर और जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद आफ्ताब अकबर का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा। रिजर्वेशन ऑफिस पर जारी तामीराती कामों का जायजा। वफाकी हुकूमत का जारी बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के जायजे के लिए जुमेरात के रोज लेस्को हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास तलब। गवर्नर पंजाब से क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। सीनियर सियासतदान सुहेल ज़ियाबट से कारकुनान की मुलाकात। कहते हैं उनकी सियासत का मकसद आम आदमी की बेहतरी है। वजीर खानम वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गवर्नमेंट मॉडर्न गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बोगेवाल के तलबा में जर्सियां तकसीम करने की तकरीब। MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद और ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान के एजाज में लाहौर कैंट में इस्तकबालिया तकरीब। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि अवाम के मसाइल के हल के लिए ठोस पॉलिसियां तश्कील दे रहे हैं। जापानी कंपनी अजबेल कैमोन और योकोहावा वाटर वर्क्स ब्यूरो के वफ्द की MD वासा से मुलाकात। वाटर मीटरिंग मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार। प्रेजेंटेशन भी दी। MD वासा सैयद जाहिद अजीज से टोनी वायसी की सरबराही में मलाइशियन वफ्द की मुलाकात। ड्रेनों में मौजूद सॉलिड वेस्ट को काबिल इस्तेमाल बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया गया। DG की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान का इजलास। जानवरों की बाकियात से निकलने वाले तेल का इंसानी इस्तेमाल रोकने के लिए मौजूदा रेगुलेशंस मजीद सख्त करने की हिदायत। मोहतरम जामिया अशरफिया मौलाना हाफिज फजल रहीम अशरफी की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकुल मदारिस अरबिया के ज़ेर एहतमाम मदारिस दीनिया कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा। लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बुजुर्ग पेंशनर्स के मसाइल के सिलसिले में हफ्तावार खुली कचहरी लगाई। मसाइल हल न करने पर अफसरों की सरजनिश। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की इस्लामी तहरीक के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी से मुलाकात। नई हुकूमत के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल और MMA की आइंदा की हिकमत अमली पर मशावरत की गई। यूनियन काउंसिल 140 फतेहगढ़ में जगह जगह गंदगी के ढेर। इलाका मकीन बदबू और ताफुन से परेशान। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी का गवर्नमेंट अफवा कॉलेज बराए खवातीन में साफ और सरसब्ज पंजाब के हवाले से आगाही सेमिनार।
काम करने वाली खवातीन के कौमी दिन की मुनासबत से पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सोशियोलॉजी के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लियती उमूर एजाज़ आलम ऑक्सटेन की खुसूसी शिरकत। आवारी होटल मॉल रोड में अतिया वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम बच्चों के हकूक़, तालीम और सेहत के हवाले से सेमिनार। हर जिले में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने और बच्चों को स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में नुमाइंदगी देने का मुतालबा। मुख्तलिफ टीवी चैनल से मुंसलिक सहाफ़तियों का कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर का दौरा। डायरेक्टर नैब ने सहाफ़ियों को आगाही और तदारुक विंग की कारकर्दगी से आगाह किया। मुख्तलिफ निजी इदारों के सहाफ़ियों ने डायरेक्टर नैब सैयद हुसनैन से मुलाकात की। डायरेक्टर नैब सैयद हुसनैन का कहना था कि करप्शन के खात्मे में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। नैब ने आगाही मुहिम के जरिए स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तलबा में करप्शन के खिलाफ शऊर उजागर किया। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन के खात्मे और कौम की आगाही में मीडिया अपना किरदार अहसन तरीके से अदा कर रहा है। PGMI और जनरल अस्पताल की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डैम फंड में 65 लाख रुपए का अतिया जमा करवाया गया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कायम करदा डैम फंड में 2 दिन की तनख्वाह 65 लाख रुपए जमा करवा दिए गए हैं। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की अपील पर डैम फंड के लिए रकम जमा की गई है। अब आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में बैलून साइनोप्लास्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। डॉक्टर यूसुफ मियां और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने बैलून साइनोप्लास्टी सर्जरी का प्रैक्टिकल करके हाजरीन को मालूमात फराहम की। सर्विसेज अस्पताल के ENT डिपार्टमेंट में मुनक्किद होने वाली वर्कशॉप में डॉक्टर मोहम्मद अमजद, डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर तैमूर लतीफ मलिक, डॉक्टर मोहम्मद तारिक, डॉक्टर नदीम रजा, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा और दीगर ने भी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट ने तरक्की पाने वाले 19 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों की फहरिस्त तैयार कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाने वाले कलीम खान को OSD बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 19 सेशन जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी होगा। सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाने वाले मोहम्मद इरम एयाज, अब्दुल रज़्ज़ाक, अली नवाज, शाहिदा सईद, गुलाम मुर्तजा, खाबर रशीद, मोहम्मद अब्बास, ज़ियाउल्लाह खान, कमर सुल्तान, औरंगजेब और सफदर इकबाल शामिल हैं। राना जाहिद इकबाल, जावेद इकबाल, मोहम्मद आशिक, सैयद नवीर रजा बुखारी, जावेद इकबाल भड़ाई, शहजाद हुसैन, मोहम्मद इकबाल और गुलाम अब्बास भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। शामिल करेंगे आपको बताएं, मारूफ अदाकार अली एजाज मरहूम की रस्म कुल उनकी रहायश गाह मुस्लिम टाउन में अदा की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान ने भी पसमानदिगान से इजहार ताज़ियत की। तफसीलात के लिए देखिए ज़ैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार अली एजाज की रस्म कुल उनकी रहायशगाह मुस्लिम टाउन में अदा की गई, जिसमें गुलकार शौकत अली, अदाकार आसिम बुखारी, इरफान खोसट, हसन अस्करी, अल्ताफ हुसैन, अली जान समेत मुख्तलिफ शोबाह एजाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। मोहतरम सैयद मोहम्मद एजाज अहमद गिलानी की रूह को अपने हुजूर में बुलंद मुकाम अता फरमा, मोहतरम की कब्र की मंजिलों को आसान फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। वज़ीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान ने भी अली एजाज के अहले खाना से ताज़ियत की। उनका कहना था कि अली एजाज जैसे फनकार सदियों में भी पैदा नहीं होते। 6000 फनकार पूरे पंजाब के अंदर फिल्म, ड्रामा, थिएटर, म्यूज़िक और तमाम आर्टिज़न शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी पूरी फैमिली के लिए 4 लाख की मालियत का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वो जारी करने का मैंने फ़ैसला करवाया। उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बड़ी मुश्किलात भी हुई, लेकिन अल्लाह पाक के करम से वो तमाम चीज़ें फाइनलाइज होके CM साहब से अप्रूवल होके अब इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन के मोड से जो है वो गुजर रहा है। रस्म कुल में शरीक दीगर शोबिस शख्सियात ने भी अली एजाज की फ़नी ज़िंदगी को खिराज अकीदत पेश किया। अली एजाज माशाल्लाह जितना अच्छे इंसान थे और उतने ही अच्छे आर्टिस्ट भी थे। मैं समझता हूँ कि वर्सटाइल आर्टिस्ट था, उसने ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे रोल किए। अली एजाज दा जाना अज साडे कोलों पुछो कि किथे किहड़े मुल्क दे विच ओदा सोग मनाया जा रहा है। इस मुल्क में जितना बड़ा फनकार पैदा होगा उसकी मौत उतनी ही अलमनाक होगी। अली एजाज तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका फन आज भी जिंदा है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।